Hi, welcome everyone. So today in this video, we are going to talk about the complete detailed syllabus for the direct recruitment of trained graduate teachers. In the last video, मैंने एक overview दिया था that paper में 4 parts होंगे, part 1, part 2, part 3 and part 4. Part 1 के अंदर proficiency होगी, language proficiency. Part 2 के अंदर general awareness, reasoning and proficiency in computer will be tested. In part 3, the perspectives on education and leadership will be there. And in the part 4, the subject specific things are there, right? In the part 4, yes, like the subject specific things are there. That is the subject specific syllabus. Correct. Now in this video, I'll tell you in detail ki kaun se wale part ke liye which specific topics we have to cover for the exam. We know that in the proficiency of language, English and Hindi both are important and both carries equal weightage, that is 10 question, 10 marks that is. So reading comprehension will be there, वर्ड पावर, ग्रामर एंड इट्स यूसेज. तो इन सारी चीजों को हमें टच करना है, इन सारी चीजों पे वी हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन. देन वही हिंदी के अंदर पठन कौशल, सब शब्द सामर्थ्य एंड व्याकरण एवं प्रयुक्ति, these things will be there. In general awareness, reasoning and proficiency in computers, that is 20 marks का है ये, 20 marks, जिसके अंदर हमें general awareness और current affairs पढ़ने होंगे, whatever is related, whatever recent topic is going on, that comes under current affairs. ये सारी चीजें आपकी reasoning ability के 5 questions होंगे. In computer literacy पे another 5 questions would be there, जिसके लिए it's better कि हम previous years में से ये देख लें, computer literacy की 5 questions और reasoning ability के. Fine. नेक्स्ट इन द पार्ट 3 जो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन वाला पार्ट है और लीडरशिप का, अगेन इसके लिए भी अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर एनालाइज करते हैं, हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है. इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर कंटेन्स 10 मार्क्स, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क्स एंड चैलेंजेस, ये आएगा. ये काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर टीचिंग एग्जाम में ग्रोथ और मैचुरेशन वाले कॉन्सेप्ट्स इज ऑलवेज देयर. Then domains of development, कि development के क्या domains है, physical, cognitive, socio-emotional, moral, etc. The deviations in the development and its implications. Yes, development is another very important topic. Development किस तरह से होती है, cephalocaudal है, all those things, ये सारी चीजें इस topics में आ जाती है. Then understanding adolescents' needs, their challenges, implications, designing institutional support, and the role of primary and secondary socialization agencies, ensuring home school continuity. These topics. Then understanding teaching and learning 15 marks का होगा, जिसके अंदर theoretical perspectives of learning, that is behaviorism, जिसके अंदर बैंड्यूरा की थ्योरी आ जाती है, right? स्किनर आ जाते हैं, पावलो आ जाते हैं. So behaviorism, cognitivism, constructivism, जिसके अंदर जीन पियाजे आ जाते हैं, he's a constructivist, with special reference to their implications, जिसमें रोल ऑफ टीचर क्या होता है, रोल ऑफ लर्नर क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए, चॉइस ऑफ क्लास टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड पावर, देन व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट, राइट? जिसके अंदर किस तरह से क्लासरूम का डिजाइन होना चाहिए, किस तरह से आपकी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आर यू प्लानिंग फॉर दी क्लास, राइट? और किस तरह से आप लर्निंग स्पेस बनाते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करके. These things will be there in this particular pointer. The next one talks about planning and organization of teaching learning material, right? Teaching learning का आपका syllabus क्या है, curriculum क्या है, what is this overt and hidden curriculum? Overt and hidden curriculum is what? Overt means something that is visible. Over जो बाहर से दिख रहा है curriculum, open curriculum. Hidden is the implicit, right? It's not explicit. Hidden curriculum क्या है? Then principle of curriculum organization, your competency based on educational experiential learning काफी important topic हो जाता है हमारे लिए, right? Then उसके बाद आ जाता है instructional plans, जैसे कि year plan, unit plan, lesson planning वगैरह, instructional material resources, ICT के ऊपर questions आ जाते हैं काफी बारी. Evaluation पे काफी अच्छे खासे questions आते हैं. What are the different types, purposes, limitation, continuous and comprehensive evaluation, ये काफी important topic है. That is CCE जो वाला topic है, correct? Continuous and comprehensive evaluation. This is another very very important topic for the exam. उसके बाद assessment से काफी questions आते हैं. Assessment for learning as learning, meaning, purpose, consideration in the learning plan. Then enhancing teaching learning process, किस तरह से आप teaching learning process को enhance कर सकते हो classroom observation के through, feedbacks के through, reflections के through. Then dialogues as a means of constructive teaching. कंस्ट्रक्टिव टीचिंग पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए हमें जो कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है उसको काफी अच्छे से पढ़ना है.
देन क्रिएटिंग अ कॉन्ड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट में किस तरह से डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन को हमें ध्यान में रखते हुए अपने लर्न प्लान और क्लास प्लानिंग करनी है। मेंटल हेल्थ क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स दैट यू कैन टेक, गाइडेंस क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, दीज थिंग्स आर देयर। देन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के अंदर लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, ये सारी चीजें किस तरह से आप स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट करा सकते हो, स्कूल प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, हाउ टू क्रिएट पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी। मतलब बेसिकली आप बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट, स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप सॉरी, स्कूल की चीजों को कैसे माइंड में रख के आप काम कर रहे हो, राइट। इसके अंदर ये सारी चीजें आ रही है, जैसे एनुअल कैलेंडर हुआ स्कूल का, टाइम टेबल हुई, पेरेंट टीचर फोरम्स हुए, ऑल दैट थिंग। Then last is perspectives in education. This is another very very important point, very very important part, जिसके अंदर से 3 questions आएंगे जो कि हमारा फोकस रखता है रोल ऑफ स्कूल। देन NEP 2020, जो 2020 में न्यू एजुकेशनल प्लान आया था, उसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें करिकुलम एंड पेडागोजी स्कूल्स में क्या है, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, करेक्ट। इंटीग्रेटेड मतलब जब तुम 2-4 चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हो साथ में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, यू आर ज्वाइनिंग एंड इंटीग्रेटिंग देम, दैट इज integrated learning. Then equitable and inclusive education पे learning for all, competency based learning and education, guiding principles क्या है child right के, child protection क्या है, what is this RTE, free right to children to free and compulsory education। RTE पे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, this is very very important topic, right, RTE। उसके बाद हिस्टोरिकल नेशनल पॉलिसीज क्या थी जो एजुकेशन में अब तक के आई हैं, किस तरह से ये आज के डेट में जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, वो किस तरह से आया हिस्टोरिकली, जितने सारी कुछ कमिटीज बनी थी, कोठारी कमीशन वाज देयर एंड लॉट ऑफ एजुकेशन एक्ट्स वाज देयर इन बिटवीन। तो उन सबका हल्का सा एक ओवरव्यू हमको देखना है। उसके बाद स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, नॉलेज, लर्निंग, करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजीज एंड असेसमेंट पे हमें हल्का हल्का ओवरव्यू देखना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंटर्स के अंदर से, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के अंदर से RTE NEP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ओनली दैट ये रिटन एग्जाम जिसके अंदर 4 पार्ट्स थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इसके अलावा भी आफ्टर द रिटन टेस्ट देयर विल बी अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्या है, ये 60 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपकी डेमो टीचिंग विल बी देयर फॉर 30 मार्क्स एंड द इंटरव्यू विल बी देयर फॉर अनदर 30 मार्क्स। तो जो वेटेज है रिटन मार्क्स की और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की, दैट इज डेमो और इंटरव्यू की कंबाइन जो है, दैट विल बी इन 70:30 रेशियो, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है will be based on this performance only, written test plus proficiency competency। okay, so written और जो professional competency है, हमें दोनों को काफी अच्छे से ध्यान में रखना है, काफी अच्छे से दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। all right, so thank you so much, I hope this video helped you in understanding the syllabus of KVS। आज हमने KVS का सिलेबस डिस्कस किया, दैट टू TGT का, right, trained graduate teachers के लिए what is the detailed syllabus that we have discussed। In the next video I'll take the syllabus for TGT science in detail। Thank you, bye bye।